Hello ITJE aspirants, how are you guys doing? I welcome you to the platform of Infinity Vision. This is a course on quadratic equation, lecture number 4. As you know, this is the first course of module 2. Today we'll be talking about the graph of quadratic function, then we are going to talk about the range of quadratic function and some inequalities related to quadratic function. And then we'll be doing some problem solving to enhance the understanding of these concepts. To begin with, we'll be first talking about the graph of quadratic function, in which we'll begin from very basic, that y is equal to x square, which we already covered in basic maths class. So we'll be a little quick in describing the evolution. We'll go from y is equal to x square, then we'll go to y is equal to minus x square, and gradually we'll reach y is equal to ax square plus bx plus c, which is a standard quadratic function. And while understanding the evolution, we'll try to summarize it in a 4 to 5 steps manner, so that whenever we have to draw a graph of quadratic function, we just need to have to draw it with just using those 4 or 5 steps which needs to be kept in mind. Now, before we begin, let's take a quick review that what we have already covered. We have already covered section A. What you can see, section A. Those who have missed first 3 lectures can find the description find the link in the description box of the whole course of first 3 lectures, where you can see that these portions have been covered. In section A, what we covered: the introduction, then completing the square method, then discriminant, then sum product, difference of roots, and then how to represent quadratic equation using roots by factor theorem, and how to represent quadratic equation using sum and product of its root. Then we did a lot of problem solving, then we did nature of roots, and then we did a lot of problem solving. Then in section B, we've covered quadratic inequality, roots under particular conditions, and then problem solving. Then in the last class, we did quadratic identity, we did problem solving, and then we did common root of 2 quadratic equation and problem solving. So today in section C, we have finished 2 sections successfully, and this is section we are beginning section C in our 4th lecture, and this is graph of quadratic function. So we'll begin the story with graph of quadratic function, then we'll go to range of quadratic function, and then if time allows, we'll be doing a lot of sum of problem solving. Okay, so let's begin. As you know, the graph of y is equal to x square, you know y is equal to, what do you understand by y is equal to x square? When you put x key value, whatever you put the x key value, the y key value will be the square of that number. So if I put x is equal to 1, you will get y key value 1. When I put x is equal to 2, you will get y key value 4. If I put x is equal to 3, you will get y key value 9. If you put x is equal to 0, you will get 0. If you put x is equal to minus 1, you'll get 1. If you could put x is equal to minus 2, you'll get 4. So this is the basic understanding which you have been understanding since your class 6, 7. What do you understand by square of a number? Now, while talking about the graph of y is equal to x square, we as you already know that we use the concept of y is equal to mod x, and mod x is nothing but the absolute value, and you know how to plot the graph of y is equal to mod x. We learned in our basic function class. So you can see this red curve is y is equal to mod x, and this blue curve is a graph of y is equal to x square. If you remember what we talked about, as you know, when you square a number, square of 0 is 1, square of 1 is 1, and square of minus 1 is 1. So what we did, we divided the region in y is equal to mod x. We divided the whole graph in 2 regions. One region was y belongs to 0 to 1, and the other region was y is greater than 1. When you pick any number between 0 to 1, let's say I picked half, what is the square of half? The square of half is 1 by 4. If you pick any number like 0.9, what's the square of 0.9? It's going to be 0.81. Similarly, whatever you see on the right, you will be observing on the left as well, right? You will be observing on the left as well. So any number, if you pick between 0 to 1, if you square them, you will see that it has been reduced. So what you see, that this portion of red curve will observe a downward force, a downward pull. So it will, like, 1 comma 1 will never move, and 0 comma 0 will never move. So what you will see a downward push to create this part. Similarly, as you know, the square of positive number and square of negative number, they are exactly same. That is, square of 3 is 9, square of minus 3 is also 9. The square of half is 1 by 4, and square of minus half. So what you will see the same thing happening on the left side. So you'll see that, okay, whatever is happening on the right, the same thing is happening on the left. So you see there is a symmetry. There is symmetry between right and left.
Again, if you pick any number from in the second region, y greater than 1, if you pick any number like 2, if you pick 3, what is the square of 2? You're going to observe it's going to be 4. So you see a forward force. If you see the square of 1.1, it's going to be 1.21. So whatever you see here, the every point of this region of y is equal to mod x is going to have a upward pull. So it will be transformed into this upper portion, right? So the graph of y is equal to x square will turn out to be of this shape, and we call this shape as parabola. We are not going to discuss parabola mathematically in a greater detail right now, because we have analytical geometry where we'll formally define what is parabola, what is the definition of parabola, what parabola is, and what do we mean when I say parabola, and what does mathematically it means. So for right now, you just understand in a casual language, okay, this shape is called parabola. So what thing you have to notice in parabola? In parabola, what you notice is there is an axis of symmetry. There is an axis of symmetry. This axis of symmetry can be simply called as axis of parabola. And the point where axis and the curve, the point where axis and the parabola meet, we call that as vertex. So you understand vertex, you understand axis, and you understand the parabola. So axis of symmetry, whatever you see on the right, you will see on the same thing you will see on the left. So if when I'm talking about y is equal to x square graph, the y-axis turns out to be the axis of symmetry. So y-axis is the axis of symmetry, जिसको आप इक्वेशन में क्या लिख सकते हो? X is equal to 0. Or what is the vertex? The vertex is a point of intersection of parabola and axis of symmetry. And where do they meet? They meet at vertex. तो यहाँ पे vertex क्या है? यहाँ पे vertex है 0, 0. So this is basic understanding of y is equal to x square. Now I want you to think of y is equal to minus x square now. So अगर आप y is equal to x square देख रहे हो और y is equal to minus x square देख रहे हो, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है? 4. और यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है? -4. यहाँ पे x की वैल्यू मैं 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है? 1. यहाँ पे x की वैल्यू मैं 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है? -1. यहाँ पे मैं x की वैल्यू -4 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है? 16. यहाँ पे मैं x की वैल्यू -4 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है? माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी -16. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग? यू आर ऑब्जर्विंग कि इनपुट सेम रखने पे y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का जो आउटपुट है वो y इज इक्वल टू x स्क्वायर के आउटपुट का नेगेटिव है. तो इसका मतलब है कि जो भी चीजें आपको ऊपर अभी इनपुट आउटपुट आ रही थी, अब वो सारी चीजें अब नीचे की तरफ आउटपुट आएगी. जैसे ये 1,1 था तो अब ये क्या हो जाएगा? 1, -1. और ये क्या हो जाएगा? -1, -1. Right? So the parabola which will emerge of y is equal to -x square is going to be a downward parabola. It is going to be a downward parabola. This was upward parabola. Let's call it upward from the direction, है ना? अगर U shape है तो आप बोल दो upward, और inverted U है तो आप बोल दो downward. और मैथमेटिकली बोलोगे तो आप मैथमेटिकली एक ही चीज भी होता है. जब आप कैलकुलस पढ़ोगे डिटेल में तो समझोगे, आप इसको कह सकते हो कॉनकेव फ्रॉम अपवर्ड, कॉन्वेक्स फ्रॉम अपवर्ड, दोनों तरीका होता है. तो अभी आप बस अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी आपको बोलना है इस तरीके से आप बोल सकते हैं. तो यू शेप को आप अपवर्ड पैरा बोल सकते हो और इन्वर्टेड यू को आप कह सकते हो डाउनवर्ड पैराबोला, राइट? सो आप देख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्सिस क्या था? यही था. तो y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का भी एक्सिस अभी भी यही है, y एक्सिस ही है. तो एक्सिस इसका क्या है? x इज इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस. और वर्टेक्स अभी भी वही है, 0,0. कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस और पैराबोला? 0,0 पे. आप देख सकते हो ये दोनों पैराबोला भी 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर, राइट? तो y इज इक्वल टू -x स्क्वायर में आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर और y इज इक्वल टू -x स्क्वायर एग्जैक्टली सेम ग्राफ है, जस्ट उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है. निगेटिव आने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गया है. तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अपवर्ड होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड होता है. अब थोड़ा सा ना इसको आगे बढ़ाते हैं. जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने ब्लू कर्व से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना रखा है और ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स है. अब हम y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ग्रीन कर्व से बना रहे हैं. ये जो कर्व है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है. नाउ ऑब्जर्व करो कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में क्या हो रहा है. अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.
x की वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू टू स्क्वायर, 2 इंटू टू स्क्वायर क्या होता है 8। तो आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कहानी में क्या हो रहा था, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या थी 1, और x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या थी 4। इसमें आउटपुट आपका 1 4 था, इसमें सेम इनपुट पे आउटपुट 2 और 8 हो गया। तो मतलब क्या हुआ है, आपकी इंक्रीमेंट ज्यादा तेजी से बढ़ गई है, ज्यादा जल्दी आप भाग रहे हो। तो ये जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसका शेप बिल्कुल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा होगा, लेकिन ये ज्यादा स्टीपर होगा। ज्यादा स्टीपर होगा मतलब ज्यादा जल्दी तेजी से भागेगा, ज्यादा तेजी से भागेगा, जो कि आप देख रहे हो भाग रहा है। 1,1 के लिए 1,2 है, और -1,-1 के लिए -1,2 है। तो मतलब ग्राफ की शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आया, जस्ट स्टीपनेस बढ़ गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में शक्ल बिल्कुल सेम रहेगी, स्टीपनेस ज्यादा आ जाएगा। किसमें, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर में और ज्यादा स्टीपनेस आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर में और ज्यादा स्टीपनेस आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का एक्सिस क्या है, अभी भी इसका एक्सिस है y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू 0, और वर्टेक्स क्या है, अभी भी वर्टेक्स 0,0 है। अभी बस ऑब्जर्व करते रहना है, फिर हम घबराइए मत। आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बहुत सारी बातें अचानक से जितनी सारी बातें कर रहे हैं ना, छोटे से 4 स्टेप्स में आ जाएंगे। तो बस ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे हमें ये अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको सीधे वो 4 स्टेप्स बता सकता हूं, लेकिन वो कभी के वो 4 स्टेप्स आपके लिए रटने जैसी बातें हो जाएगी। लेकिन अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इस बार मैंने y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर कर दिया है, 0.5x स्क्वायर कर दिया है। अभी 2 3 4 में क्या हो रहा था वो आपने इजीली विजुअलाइज कर लिया। अब देखिए हाफ में क्या हो रहा है, यहां देखिए ये जो वायलेट कर्व है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर इधर रख लीजिए। यहां पे x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, यहां पे x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हाफ, यहां पे x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, यहां पे x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो मतलब देख रहे हो इस बार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसके सामने ज्यादा स्टीपर हो गया, मतलब y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, शैलो हो गया। y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, शैलो हो गया। अब देख रहे हो ये शैलोअर हो गया। ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, शैलो हो गया। एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया, एक्सिस अभी भी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी भी कौन है, y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 0। वर्टेक्स अभी भी क्या है 0,0। तो मतलब आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर में a 1 से बड़ा करो या a 0 से 1 करो, शक्ल सूरत में कोई चेंज नहीं आएगी, एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगी, वर्टेक्स में कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज कहां आएगी, स्टीपनेस में। अगर आप 1 से आगे बढ़ोगे तो ग्राफ स्टीपर हो जाएगा, और 0 से 1 के बीच में रहोगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ग्राफ शैलोअर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर में बताओ कौन शैलोअर होगा, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि 1/2 1/3 से बड़ा होता है, तो 1/3 एक्स स्क्वायर शैलोअर होगा, हाफ एक्स स्क्वायर स्टीपर होगा। वैसे ही अगर मैं यहां पे लिख दूं y इज इक्वल टू 2/3 एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 2/3 एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर से ज्यादा स्टीपर होगा, और y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू 2/3 एक्स स्क्वायर से ज्यादा शैलोअर होगा। तो आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में a अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अभी भी अपवर्ड है, एक्सिस सेम है, वर्टेक्स सेम है। अब a 1 से बड़ा हो रहा है तो ग्राफ स्टीपर हो रहा है, और a 1 से छोटा हो रहा है तो ग्राफ शैलोअर हो रहा है। बस इतनी ही चीज आपको ध्यान में रखनी है। आइए सेम स्टोरी देखते हैं। y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर के लिए क्या हो रहा है, तो y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं ये ब्लैक कर्व y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर है, ये बिल्कुल मिरर इमेज होगा y इज इक्वल टू हाफ माइनस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का बिल्कुल मिरर इमेज होगा y एक्सिस से, क्योंकि सेम इनपुट आउटपुट देगा विथ अ नेगेटिव साइन, सेम आउटपुट देगा विथ अ नेगेटिव साइन। सो यू कैन से ओके द पैराबोला शेप एंड एवरीथिंग विल बी सेम, बट ये थोड़ा सा स्क्वीज्ड इन हो जाएगा, है ना, वो उसका मिरर इमेज हो जाएगा। और सेम लॉजिक आप y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर के लिए भी लगा सकते हो। तो व्हाट डिड वी लर्न, वी लर्न दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, a की वैल्यू निगेटिव होगी। तो a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ अपवर्ड होगा, a की वैल्यू निगेटिव होगी तो ग्राफ
डाउनवर्ड होगा। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा ए अगर 1 से बड़ा होगा तो स्टीपर होगा, और ए अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो शैलोअर होगा, राइट। और यहां पे आपने देखा कि अगर ए -1 से छोटा है तो स्क्वीज्ड इन होगा, इसका मिरर इमेज होगा, स्टीपर कह सकते हो आप। और क्या कहते हैं, ए अगर 0 और -1 के बीच में लाई करेगा तो शैलोअर होगा, जैसा कि आप कॉमन सेंस से बता सकते हो। ये तो हो गई कहानी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किस तरीके से पैराबोला का शेप पैराबोला की ग्राफ के ओरिएंटेशन में बदलाव लाएगा। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में a सिर्फ आपको बताता है कि आप अपवर्ड जाओगे या डाउनवर्ड जाओगे। ये सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हमने अभी डेवलप की। दूसरी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। पहला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और दूसरा ग्राफ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो लाइट ब्लू कलर में है दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये डार्क ब्लू कलर में है दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप गौर से देखो कि दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, बस ऐसा लग रहा है कि दिस ग्राफ has been shifted 1 unit right. This graph has shifted 1 unit right. Vertex 1 unit right. Axis भी 1 unit right shift हो गया है, अगर आप गौर से देखोगे तो, है ना। तो आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर में पैराबोला एग्जैक्टली सेम शेप का है, लेकिन वो थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो गया। कितना यूनिट राइट शिफ्ट हो गया? 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, आप बताओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? x इज इक्वल टू 0, और पैरा वर्टेक्स क्या होता है? 0,0, और y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं ये पैराबोला 1 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसका एक्सिस क्या होगा? इसका एक्सिस होगा x इज इक्वल टू 1, या आप ये कह सकते हो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 1। दिस बिकम्स योर एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये आपका एक्सिस हो गया। और जहां पे इन दोनों की मुलाकात हो रही है एक्सिस और पैराबोला की, दैट इज द वर्टेक्स। ये 0,0 था, तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया? इसका वर्टेक्स हो गया 1,0। तो आपने क्या देखा? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू x माइनस 1 के होल स्क्वायर में क्या चीज देखा? कि आपने देखा कि आपका पैराबोला एग्जैक्टली सेम है, बट 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया। तो कॉमन सेंस से बताइए, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, अगर मैं आपको y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर ड्रॉ करने को बोलूं, तो आप क्या करेंगे? वो पैराबोला एग्जैक्टली 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट कर देंगे। x माइनस 3 बोलूंगा तो 3 यूनिट शिफ्ट कर देंगे। x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बोलूंगा तो हाफ यूनिट शिफ्ट कर देंगे। x माइनस 7 का होल स्क्वायर करूंगा तो 7 यूनिट शिफ्ट कर देंगे। अब देखते हैं x प्लस 1 में क्या हो रहा है। अब देखिए क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। दिस ग्रीन कर्व इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस ग्राफ बिकम्स y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं द होल ग्राफ, दिस ग्रीन ग्राफ, और अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में देखेंगे तो 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। आप इसकी एक्सिस देखोगे तो आपकी एक्सिस ये है, राइट, आपकी एक्सिस ये है, और आप देख रहे हो कि आपका वर्टेक्स ये है। तो आपका सारा ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो आप कह सकते हो इसकी जो एक्सिस होगी, एक्सिस क्या होगी? एक्सिस ये हो गई है, विच इज x इज इक्वल टू माइनस 1। x प्लस 1 इक्वल 0 भी कर सकते हैं, विच इज x इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सिस। और वर्टेक्स क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा माइनस 1,0। उसी तरीके से x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 यूनिट लेफ्ट। x प्लस 3 3 यूनिट लेफ्ट। तो अब आपको कॉमन सेंस से बताना है y इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर अगर आपको ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू x माइनस k, डाल दो, a बार बार यूज करने से आप कंफ्यूज ना हो जाए। y इज इक्वल टू x माइनस k का होल स्क्वायर अगर आपको ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे? y इज इक्वल टू x स्क्वायर बनाओगे और k यूनिट राइट शिफ्ट कर दोगे। क्या करोगे? k यूनिट राइट शिफ्ट कर दोगे। और y इज इक्वल टू x प्लस k का होल स्क्वायर अगर बनाना है, वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर, तो आप क्या करोगे? k यूनिट लेफ्ट साइड, पूरे कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर को k यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दोगे। लेकिन शेप ऑफ पैराबोला विल नॉट चेंज, ओनली वर्टेक्स एंड एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, इक्वेशन चेंज करेगा, दिखने में बिल्कुल सेम रहेगा। वैसे ही देखते हैं क्या होता है जब पैराबोला को के नंबर में ऐड करते हैं। यहां पे देखिए क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए क्या हुआ? पैराबोला आपका 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्या हो गया है? 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। देख रहे हैं आप, आपका पैराबोला 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब ये जो 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या हो रहा है, जो इनपुट था y, जो आउटपुट था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और जो आउटपुट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का, आप देख रहे हो सारे आउटपुट को हमने 1 यूनिट बढ़ा दिया है। तो पैराबोला एग्जैक्टली सेम है, किसकी सेम है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, लेकिन इस बार पैराबोला को आपने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ऊपर की तरफ शिफ्ट करने से आपके एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आया, एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आया, एक्सिस अभी भी y एक्सिस ही है, लेकिन वर्टेक्स में बदलाव आ गया। वर्टेक्स क्या बन गया है, वर्टेक्स बन गया है दिस पॉइंट हैज बिकम योर वर्टेक्स विच इज 1 यूनिट अप। तो इसको वर्टेक्स क्या कहेंगे, 0,1। तो अगर आपको कोई बोले कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बना के k यूनिट अपवर्ड ले जाओगे, अपने पैराबोला को k यूनिट अपवर्ड ले जाओगे, राइट। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन में क्या हुआ। देखिए ये आपका पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन में 1 यूनिट डाउनवर्ड हो गया, तो शेप में कोई चेंज नहीं आया, एक्सिस अभी भी क्या है, y एक्सिस विच इज x इज इक्वल टू 0, एक्सिस अभी भी x इज इक्वल टू 0 है। वर्टेक्स नीचे की तरफ पुल हो गया है विच इज 0, माइनस वन, है ना, क्या हो गया, 0, माइनस वन, क्योंकि एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट माइनस वन है, तो वर्टेक्स आप क्या कह सकते हो, 0, माइनस वन। तो एक्सिस अभी भी y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0, और वर्टेक्स है 0, माइनस वन, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो कॉमन सेंस से बताइए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सेम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ रहेगा, लेकिन अब क्या होगा, k यूनिट डाउनवर्ड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, k यूनिट डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये सारी चीजों को समझते हुए अब देखिए क्या कहते हैं, मैंने एक और वेरिएशन ले लिया कि x माइनस वन का होल स्क्वायर में अगर प्लस वन कर दें, तो आपको जैसा कि पता है प्लस वन करने से पैराबोला ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो वर्टेक्स था ये क्या था, ये था 1,0, अब ये यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया 1,1। एक्सिस अभी भी वही है, एक्सिस क्या है, x माइनस वन का 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1, और वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया 1,1। घबराना नहीं है, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी सब सीखेंगे। अभी बस मैं आपको ऑब्जर्व करा रहा हूं कि आपका पैराबोला कैसे चेंज करेगा। उसी तरीके से मैंने x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन किया, तो माइनस वन करने पे क्या हुआ, डाउनवर्ड हो गया। तो वही आइडिया है कि चीजें नीचे की तरफ आ गई। यहाँ पे वर्टेक्स क्या था, यहाँ पे वर्टेक्स था -1,0, अब वर्टेक्स क्या बन गया, -1, -1। एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया है ऊपर नीचे करने से, ठीक है। ऊपर नीचे करने से आपके एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टेक्स में चेंज आएगा, और राइट लेफ्ट ले जाने में आपका वर्टेक्स और एक्सिस का कोऑर्डिनेट बस 1 यूनिट, मतलब a यूनिट राइट या a यूनिट लेफ्ट जाएगा, उस हिसाब से आपको हैंडल करना आना चाहिए। लेकिन अभी क्या था, अभी हमने काफी ग्राफ्स देखे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर देखा, फिर y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर, a 1 से बड़ा हो और a जब 0 से 1 के बीच में हो, a -1 और 0 के बीच में हो, या a -1 से छोटा हो, तो कैसे ग्राफ के एक्सिस और वर्टेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, शेप में फर्क पड़ रहा था, और वो कभी स्टीपर हो रहा था तो कभी शैलोअर हो रहा था, बट ओवरऑल अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो वो पैराबोला ही था विथ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड विथ अ वर्टेक्स। उसके बाद हमने y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर भी देखा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का भी होल स्क्वायर देखा। तो हमने देखा कि हमारा पूरा पैराबोला या तो a यूनिट राइट जा रहा है या a यूनिट लेफ्ट जा रहा है। जो भी यूनिट राइट या लेफ्ट जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एक्सिस और वर्टेक्स भी हमारा उतना ही यूनिट राइट या लेफ्ट जा रहा है। तो एक्सिस में क्या बदलाव आ रहा है, इक्वेशन उतना राइट या उतना लेफ्ट जा रहा है, वर्टेक्स उतना राइट या उतना लेफ्ट जा रहा है। उसी तरीके से जब हमने देखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के में क्या क्या चीजें आ रही थी, तो इन सारी लर्निंग को समझते हुए अब हम अपने पैरा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन फंक्शन होता है आपका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको फॉर्मलाइज करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को देखिए, मैंने फर्स्ट आई टॉक अबाउट बिफोर आई टॉक अबाउट साइन ऑफ ए, आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए। देखिए इसमें और इसमें एक कनेक्शन है, देख रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। अगर आपको मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर याद होगा तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, या आप देख सकते हो दोनों एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि आपको पता है d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को आप देख लो, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज d, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब गौर से देखो क्या हुआ, इसको खोल दो, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 2bx बाई 2a, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी। अब देखो क्या होगा, a अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a,
ये बन जाएगा bx माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी। देखिए ये और ये कट गया, सो यू गॉट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। तो आप जैसा कि जानते हो एक्स प्लस बी बाई 2a ये मेरे को मदद करेगा क्या बताने में, एक्सिस बताने में, और ये क्या मदद करेगा मेरे को बताने में कि आपका पैराबोला ऊपर नीचे कैसे जा रहा है। तो आइए अब सारी चीजों को समराइज करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें जब भी ग्राफ बनाना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो इतना ज्यादा जो हमने किया है वो करने की जरूरत नहीं, बस वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए था, तो हमने वो अंडरस्टैंडिंग ले लिया है। तो जब भी आपको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपना ग्राफ का साइन ऑफ ए देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि भैया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें a की वैल्यू क्या है, a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। तो आपको पता है a पॉजिटिव होगा तो आपका पैराबोला अपवर्ड होगा और a नेगेटिव होगा तो आपका डाउनवर्ड होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे ही आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखा, आपको पता चल गया कि आपका पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। बस इतना ही जानना, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट, पहले स्टेप में दूसरे स्टेप चलते हैं। साइन ऑफ डी, जैसा कि आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो आपके पास टू रियल रूट्स होते हैं डिस्टिंक्ट, और अगर डी जीरो होता है तो टू इक्वल रूट्स होते हैं, और डी अगर नेगेटिव होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं। तो इसको अगर ग्राफिकली समझे तो आप समझ सकते हैं ऐसे कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ए पहला केस में ले रहा हूं, रेड से मैं ले रहा हूं ए पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव का केस ले रहा हूं, तो ए पॉजिटिव के साथ अगर डी भी पॉजिटिव है तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। अगर डी जीरो है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, और डी अगर नेगेटिव है तो पैराबोला ऐसा बनेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डी अगर पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, डी जीरो है तो ऐसा बनेगा, डी नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। दूसरा मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं ए नेगेटिव के लिए। अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा, और या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ये कब होगा, ये होगा जब डी पॉजिटिव है, ये कब होगा जब डी जीरो है, और ये कब होगा जब डी नेगेटिव है। तो आपको दो चीज जाननी होगी, साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ डी। अगर साइन ऑफ ए, उससे आपको पता चलेगा कि आपका पैराबोला अपवर्ड होने वाला है या डाउनवर्ड होने वाला है, और डी से आपको पता चलेगा कि आपका पैराबोला एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट होने वाला है, टच होने वाला है या डू नॉट टच होने वाला है। और अगर अपवर्ड है और टच नहीं होने वाला है तो टोटली ऊपर चला जाएगा, और अगर डाउनवर्ड है और टच नहीं होने वाला है तो टोटली डाउनवर्ड हो जाएगा। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ माइनस बी बाई टू ए निकालना। क्यों? क्योंकि x प्लस बी बाई टू ए आपका परफेक्ट स्क्वायर बना है, तो ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका एक्सिस बता रहा है। तो x प्लस बी बाई टू ए इज गोइंग टू बी योर एक्सिस, x प्लस बी बाई टू ए इज गोइंग टू बी योर एक्सिस। याद कीजिए हम लोग जहां पे भी x के साथ, जब x स्क्वायर अकेला था तो x और कोई भी कोफिशिएंट ऑफ x वेक्स नहीं था तो एक्सिस क्या होता था, जीरो होता था। लेकिन जैसे ही आप क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो x के अंदर जो भी चीज आती है उसको इक्वल टू जीरो करना होता है। याद कीजिए x माइनस वन का होल स्क्वायर में एक्सिस क्या था, x इज इक्वल टू वन, और x प्लस वन का होल स्क्वायर में एक्सिस क्या था, x इज इक्वल टू माइनस वन। इसको सोचने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपका ये, लेट से एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा कुछ पैराबोला है। अगर ये आपका अल्फा कॉमा जीरो है और ये आपका बीटा कॉमा जीरो है, तो बताइए एक्सिस क्या होगा, एक्सिस आपका ये होगा। ये जो एक्सिस होगा ये इसका मिडिल पॉइंट होगा। मिडिल पॉइंट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमा जीरो। जितना दूर यहाँ है उतना ही दूर यहाँ है। याद कीजिए दोनों का मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हो, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट प्लस बाई टू, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो आप कह सकते हो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अल्फा प्लस बीटा बताइए क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए। तो वैल्यू ऑफ माइनस बी बाई टू ए निकालते ही आपको आपकी एक्सिस पता चल जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सर्कल बनाना है तो आपको क्या चीज चाहिए, तो आप बोलोगे सेंटर और रेडियस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर लाइन बनाना है तो आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे सर दो पॉइंट। तो इसी तरीके से अगर आपको पैराबोला बनाना है तो आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए एक्सिस एंड वर्टेक्स। क्या चाहिए, एक्सिस एंड वर्टेक्स और सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन आपके साइन ऑफ ए से पता चल जाता है। आपको अब एक्सिस जानना है और वर्टेक्स जानना है। आपने साइन ऑफ ए और साइन ऑफ डी से चीजें ऑलरेडी हैंडल करना सीख लिया है।
वैल्यू ऑफ माइनस डी बाई फोर ए निकालना क्यों जरूरी है ये बता देता हूं। ये आपका देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको पता चल चुका है एक्सिस क्या है, एक्सिस है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो जो वर्टेक्स होगा वो एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो उसका एब्सिसा क्या है, माइनस बी बाई टू ए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस बी बाई टू ए वाई में पुट करना पड़ेगा। पुट कर देते हैं, a इंटू माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, a इंटू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी। तो क्या बन गया, ये बन गया बी स्क्वायर बाई फोर ए माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा फोर ए इंटू फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट माइनस डी बाई फोर ए। तो जैसे ही आप माइनस डी बाई फोर ए निकाल लिया आपका वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स क्या होगा, एब्सिसा माइनस बी बाई टू ए होगा और वर्टेक्स क्या होगा, माइनस डी बाई फोर ए। तो अब आपका एक्चुअली में पैराबोला ड्रॉ करने का तरीका आ गया। अब अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी, अब आप उन सबको बस एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसको बंद करके रख सकते हैं। अब जो चीजें हैं जो ध्यान में रखना है अब शुरू हो रही है, वो क्या, सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि आपको पैराबोला ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, एक्सिस, वर्टेक्स और सेंस ऑफ डायरेक्शन। एक्सिस, वर्टेक्स और सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये आपको, जैसे अगर मैं बोल दूंगा कि भैया पैराबोला का सेंस ऑफ डायरेक्शन ऐसा है, एक्सिस ये है, वर्टेक्स ये है, तो आप पैराबोला तुरंत बना दोगे, आप बोलोगे दिस इज गोइंग टू बी द पैराबोला। आपसे मैं बोलूंगा कि एक्सिस ये है और सेंस ऑफ डायरेक्शन ये है और वर्टेक्स ये है, तो आप ऐसे तुरंत पैराबोला बना दोगे। तो पैराबोला बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सिस, वर्टेक्स एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको कहां से मिल रहा है, सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको ए से मिल रहा है। ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। एक्सिस कहां से मिल रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए कैसे ड्रॉ करोगे, आप कोई भी एक्स एक्सिस खींच दो और मान लो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू आई एक्स इज इक्वल टू थ्री। क्या आई, एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो इसको ले 3,0 और क्या बन जाएगा, ये आपका एक्सिस बन जाएगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर एक्सिस ऑफ पैराबोला। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप वर्टेक्स निकालोगे, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा डी माइनस डी बाई फोर ए। यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, माइनस डी बाई फोर ए, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो आपने जैसे वर्टेक्स का ऑर्डिनेट निकाल दिया, आपको वर्टेक्स पता चल गया है। अब माइनस क्या है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। अब माइनस डी बाई फोर ए एक पॉजिटिव नंबर है तो पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ पे होगा, और माइनस डी बाई फोर ए अगर नेगेटिव है तो यहाँ कहीं पे होगा। तो आपको माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए क्लास 9th में सीखा था किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना, तो आपने जैसे प्लॉट कर लिया वैसे ही आप पैराबोला बना सकते हो। अगर सेंस ऑफ डायरेक्शन अपवर्ड है तो ऐसा बन जाएगा, सेंस ऑफ डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा, अगर ये वर्टेक्स है तो ऐसा बन जाएगा या ऐसा बन जाएगा, अगर डी जीरो है तो पैराबोला ऐसा बन जाएगा या ऐसा बन जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि आप पैराबोला कैसे बनाओगे। पैराबोला बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैराबोला बनाने के लिए आपको चाहिए साइन ऑफ ए जो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ही मिल जाएगा। फिर क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए एक्सिस दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और फिर क्या चाहिए, आपको वर्टेक्स चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, आप अपना पैराबोला तुरंत बना लोगे। तो जैसे ही आप पैराबोला बनाते हो, लेट से आपके पास है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने तुरंत देख लिया ए क्या है, आपने तुरंत x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए निकाल दिया, आपने तुरंत वर्टेक्स निकाल दिया माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, 6 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पैराबोला ऐसा दिख सकता है, 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 पैराबोला ऐसा दिख सकता है ना। रेड ब्लैक 6 पॉसिबिलिटीज हैं, वो 6 पॉसिबिलिटीज कुछ भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जब पैराबोला ऐसा होगा तो आप इसको अल्फा बीटा कह देंगे, जब पैराबोला ऐसा होगा तो आप इसको अल्फा बीटा कह देंगे। इसमें आप कह दोगे 2 इक्वल रूट्स, इसमें कह दोगे आप नो रियल रूट्स। और ये पॉइंट क्या होगा, ये आपका वर्टेक्स होगा, ये क्या होगा, 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 वर्टेक्स होगा। अकॉर्डिंगली आप अपने पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव, तो ये देखो फिर से वही चीज है जो मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं ये पैराबोला बनाऊं, पहला केस है ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव, तो पैराबोला ऐसा होगा। दूसरा केस क्या है, ए पॉजिटिव एंड डी इक्वल टू जीरो, तो पैराबोला कैसा होगा, ऐसा होगा। और तीसरा केस क्या है, ए पॉजिटिव एंड, तो ये पैराबोला होगा। इस तीनों में यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, ये होगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ये क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए।
जो कि जीरो हो जाएगा इस केस में नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो माइनस माइनस डी बाई फोर ए, डी भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव होगा, दैट इज वाई द पैराबोला हैज बीन पुल्ड डाउन। और ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। अब इसमें आप क्या कह सकते हो, डी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद आगे माइनस लगा हुआ है तो क्या हो गया पॉजिटिव, दैट इज वाई द वर्टेक्स हैज गॉन अप, पैराबोला ऊपर की तरफ जा चुका है। और अगर ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा डी इक्वल टू जीरो, या पैराबोला ऐसा बनेगा। सो दिस समराइजेज आवर ग्राफ। तो अब आप स्टेप्स लिख सकते हो, स्टेप्स टू ड्रॉ y is equal to ax square plus bx plus c. First step, look for sign of a पॉजिटिव ऐसा बनेगा, a नेगेटिव ऐसा बनेगा, लेकिन अभी बनाना नहीं है, बस आपको शेप पता चला है। सेकेंड, ड्रॉ x is equal to माइनस b बाई टू ए, d निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर पॉजिटिव है जीरो है नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, 1 पॉइंट पे टच करेगा नो पॉइंट, ठीक है। फोर्थ क्या करोगे, वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। फिर क्या करोगे, ड्रॉ द पैराबोला, क्या होगा, ड्रॉ द पैराबोला। पैराबोला जैसे ही ड्रॉ कर दिया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जहां पे एक्स एक्सिस कहां पे कट करेगा, अगर कट करेगा तो अल्फा कॉमा जीरो पे और बीटा कॉमा जीरो पे। क्या ये निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। और आपसे पूछा जाए कि आपका पैराबोला वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका पैराबोला वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो आप क्या बोलोगे, y एक्सिस को कट करने के लिए एक्सिस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो आप पुट कर दोगे x की वैल्यू जीरो, तो y इज इक्वल टू सी। तो आपसे दो चीज मैं ऐड कर देता हूं, योर पैराबोला y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कट्स, इफ कट्स x एक्सिस then it will cut at अल्फा कॉमा जीरो एंड बीटा कॉमा जीरो। आपको पता है अल्फा कॉमा जीरो और बीटा कॉमा जीरो कहां पे है। और y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल कट y एक्सिस, y एक्सिस में एक्सिस क्या होता है, जीरो होता है, तो आप इसको जीरो पुट कर दो x को, तो a इंटू जीरो स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू सी। तो कहां पे कट करेगा, जीरो कॉमा सी पे कट करेगा। आपका जो पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जीरो कॉमा सी पे। तो छटपट फिर से रिवाइज करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको a देखना है, a पॉजिटिव है तो अपवर्ड, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, d पॉजिटिव है तो कट करेगा दो पॉइंट पे, d जीरो है तो टच करेगा, और d नेगेटिव है तो सीधे या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ a। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। ये आपको x एक्सिस ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले y एक्सिस नहीं ड्रॉ करना है, ड्रॉ क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको वर्टेक्स निकालना है, दैट इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है, वो प्लॉट करना है, और वो प्लॉट करते ही आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। वो ग्राफ रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप x एक्सिस को कहां पे कट करोगे, तो x एक्सिस को कहां पे कट करोगे, अल्फा कॉमा जीरो और बीटा कॉमा जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो एक्स एक्सिस कहां पे टच करोगे, माइनस बी बाई टू ए पे टच करोगे। और अगर क्या कहते हैं डी नेगेटिव है तो आप एक्स एक्सिस के साथ आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आपने पैराबोला ड्रॉ कर लिया है, आपका पैराबोला वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो आप बोलोगे जीरो कॉमा सी पे। अब आते हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन में। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि पैराबोला का ग्राफ कैसा है, या तो a पॉजिटिव होगा या तो a नेगेटिव होगा। दोनों केस ले लेता हूं, अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मैं x एक्सिस y एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, और a नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आपको पता चल चुका है कि ये जो पॉइंट होगा इसमें a पॉजिटिव के लिए जो वर्टेक्स का पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल एक्ट एज पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट। क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे ग्राफ अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगी, दैट इज माइनस बी बाई टू ए पे क्या वैल्यू आती है, माइनस डी बाई फोर ए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे अपना मिनिमम पॉइंट अचीव करेगा, उसके बाद ग्राफ की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। तो रेंज क्या हो जाएगा, y विल बिलोंग टू माइनस डी बाई फोर ए टू इंफिनिटी,
माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी। ये आपका रेंज होगा अगर ए पॉजिटिव है। ए नेगेटिव है तो आप देख सकते हो वर्टेक्स अगेन विल एक्ट एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ नहीं जा सकती। तो y की जो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? वर्टेक्स पे। वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो वर्टेक्स पे मैक्सिमम पॉइंट होगी और नीचे कहां तक जा रही है? माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए। माइनस इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड, माइनस डी बाई फोर ए इंक्लूडेड। अब एक पैराबोला ऊपर है नीचे है डजेंट मैटर, जो शेप है वो उसके हिसाब से यही होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी जाएगी रेंज, और ए अगर नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए तक जाएगी। ओके, अब आते हैं कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में x1 कॉमा x2। अब देखिए क्या होगा कि अब उस वक्त था कि आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का सीधे x बिलोंग्स टू r में पूछा था, तो आपने कहा माइनस डी बाई फोर से इन्फिनिटी अगर a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज में इसकी मिनिमम और मैक्सिमम बताओ। तो देखो, आप जब पैराबोला बनाते हो या तो आप पैराबोला ऐसे बनाते हो या तो आप पैराबोला ऐसे बनाते हो, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ ए। अब आपको ये पता चल चुका है कि ये आपका मिनिमम पॉइंट है माइनस बी बाई टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। और अगर आप ये वाला बना रहे हो तो आप बोल सकते हो माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए मैक्सिमम पॉइंट है। तो एक स्टोरी ये हो सकती है कि x1 x2 के बीच में माइनस बी बाई टू ए एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। क्या? माइनस बी बाई टू ए एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि हम यहां से यहां के बीच में पूछ रहे हैं, मतलब x1 x2 माइनस बी बाई टू है, इसके बीच में ला ही नहीं करता है। तो आपका x1 x2 या तो टोटली यहां पे है या तो टोटली यहां पे है, या तो टोटली आपका यहां पे है या तो टोटली आपका यहां पे है, या तो टोटली यहां पे है या तो टोटली यहां पे। मतलब ये आपके पार्ट ऑफ द गेम नहीं है। मतलब क्या पहला कंडीशन बोल रहे हो? माइनस बी बाई टू ए डज नॉट बिलोंग टू x1 से x2। तो अब आप क्या कर सकते हो? इसका रेंज हो जाएगा इस तरह की कहानी में। आप इसका रेंज लिखोगे मिनिमम बिटवीन fx1 एंड fx2, मतलब x1 x2 में जो मिनिमम वैल्यू आप पहले लिखोगे, फिर मैक्स ऑफ fx1 fx2, fx1 fx2 में जो मैक्सिमम है आप उसको लिखोगे। तो दैट वुड बी द रेंज। अगर माइनस बी बाई टू ए आपके उसमें लाई नहीं कर रहा है, x1 x2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, लेट्स से माइनस बी बाई टू ए लाई कर रहा है, तब क्या करोगे? तब आपको देखना होगा कि ये पैराबोला ऐसा है या ऐसा है। x1 x2 अगर माइनस बी बाई टू ए यहाँ है, x1 और x2 ऐसे कुछ आ रहा है, या माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर यहाँ है और x1 x2 कुछ ऐसा आ रहा है, तो आपको पता चल चुका है कि मिनिमम क्या होगा? मिनिमम माइनस डी बाई फोर ए होगा। मैक्सिमम क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक मैक्सिमम होगा। और यहां पे क्या होगा? यहां पे आप ये मैक्सिमम हो जाएगा माइनस डी बाई फोर है और इसको, तो इन दोनों के लिए आप कोई रूल नहीं बना सकते हैं। तो जब भी आपको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में पता करना है कि क्या रेंज है, तो उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और ग्राफ ड्रॉ करके आप बता सकते हो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको दो चीज ध्यान में रखनी होगी। एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो x1 x2 है जिसके बीच में आपको डोमेन निकालना है, उसमें माइनस बी बाई टू है, उसके अंदर लाई करता है कि नहीं। अगर नहीं लाई करता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें x1 x2 में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो उधर चला जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो नीचे हो जाएगा और वैल्यूज उसी के बीच में लाई करेगी। और अगर माइनस बी बाई टू लाई करता है तो फिर आपको देखना होगा कि ये a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट आप माइनस डी बाई फोर ए को देंगे और मैक्सिमम पॉइंट उन दोनों में से किसी एक को। और अगर a नेगेटिव है तो आप मैक्सिमम पॉइंट माइनस डी बाई फोर ए को देंगे रेंज का, और मिनिमम पॉइंट उन दोनों में से जो छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनालिटिकली सॉल्व करना होगा। इसके लिए कोई रूल या तरीका बताने की, मतलब इसके लिए कोई रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है। दिमाग में रखना है कि ग्राफ मुझे आता है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में अगर आपके पास a ग्रेटर देन जीरो है, d ग्रेटर देन जीरो है, d इक्वल टू जीरो है और d निगेटिव लेस देन जीरो है, आपको सिंपल सी बात है, अगर a ग्रेटर देन जीरो है, d ग्रेटर देन जीरो, ये कहानी है। इसमें आपको अगर पूछा जा रहा है ये कहानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा है ये, बीटा है, अगर आपको ये सॉल्व करने को आ जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो और ये कहानी है, तो आप तुरंत बता सकते हो x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से बीटा यूनियन ओपन ब्रैकेट यूनियन अल्फा से इन्फिनिटी। और अगर आपसे पूछा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो तो आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू बीटा से अल्फा, राइट। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है तो आप कह सकते हो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस अल्फा कॉमा बीटा, मतलब एक ही वैल्यू आप निकाल सकते हो, माइनस जो भी एक्स की वैल्यू है दैट इज माइनस बी बाई टू है, आप कह सकते हो अगर ये कहानी है। तो अगर आपसे इनइक्वालिटी पूछा जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, ये सॉल्व करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप डी की वैल्यू देखो, डी अगर पॉजिटिव है तो मतलब आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से बीटा की तरफ यूनियन अल्फा से इन्फिनिटी, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपकी डी की वैल्यू जीरो है तो आप कहोगे ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फ्रॉम माइनस बी बाई टू है। और अगर लेस देन जीरो, और क्या कहते हैं डी लेस देन जीरो है तो आप कह सकते हो कि आपकी जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, राइट। तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको मैं समराइज कर देता हूं, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव। सो आपसे पूछा जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, तो आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से बीटा यूनियन अल्फा से इन्फिनिटी। और अगर आपसे पूछा जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो तो आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू बीटा से अल्फा। अगर स्लैक है तो आपको अल्फा बीटा को इंक्लूड करना है, नहीं स्लैक है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर ए पॉजिटिव है और डी इक्वल टू जीरो है और इक्वेशन है ए एक्स, इन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो तो आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस बी बाई टू ए। और आपसे पूछा जाएगा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो है तो आप लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू फाइव, नो वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये नेगेटिव होगा। और अगर आपसे पूछा जाए ए पॉजिटिव डी नेगेटिव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो तो आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल वैल्यूज के लिए ट्रू स्टेटमेंट है। सेम वे ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है और डी पॉजिटिव है। आपसे पूछा गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, ग्राफ देख लीजिए कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा, ये पॉइंट हो गया अल्फा, ये पॉइंट हो गया बीटा। आपसे पूछा जा रहा है पॉजिटिव तो ये रीजन हो गया, तो आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू बीटा से अल्फा। और अगर आपसे पूछा जाए, आई एम श्योर आपको ये सारी चीजें हमने बेसिक मैथ्स में करा दी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आपसे पूछा जाए ए लेस देन जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप इसमें ये पूछा जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो तो आप बोलोगे माइनस इन्फिनिटी से बीटा यूनियन अल्फा से इन्फिनिटी। इस कहानी के लिए आपसे पूछा जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो तो आप बोलोगे नो वैल्यूज। और अगर आपसे पूछा जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो तो आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस बी बाई टू ए, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो हो रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए a लेस देन जीरो एंड d इज ऑल्सो लेस देन जीरो तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 5। और अगर आपसे पूछा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r। तो आई होप मैंने ग्राफ का ही ये सारा, अगर आप ग्राफ को मास्टर कर चुके हैं तो इन सबको करने में ये नहीं होगी। आइए दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए। तो अभी हमने जो भी चीज देखा उसको मैं पहले समराइज कर देता हूं, फिर उसके बाद तो आपको जब भी ग्राफ बनाना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, पैराबोला बनाने के लिए आपको क्या तीन चीजें चाहिए, ओरिएंटेशन, एक्सिस एंड वर्टेक्स। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है तो साइन ऑफ a आपको ओरिएंटेशन देगा, एक्सिस देगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए और वर्टेक्स देगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। जैसे ही आपने एक्सिस, वर्टेक्स और डायरेक्शन का सेंस पता चल गया आप पैराबोला ड्रॉ कर दोगे। अगर आपने पैराबोला ड्रॉ किया है और आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपके एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट किया जाएगा, दैट इज बीटा कॉमा जीरो और अल्फा कॉमा जीरो। अगर आपका डी जीरो है तो आपके एक्सिस को, एक्स एक्सिस को सिर्फ जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे टच किया जाएगा। और अगर आपका डी नेगेटिव है तो वो टच ही नहीं करेगा, तो या तो वो टोटली ऊपर होगा या तो वो टोटली नीचे होगा डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ ए। उसके बाद हमने बात की थी रेंज की।
रेंज के लिए उसके बाद हमने बात की थी कि आपका पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 0, C पे। उसके बाद हमने बात की थी रेंज की, x बिलोंग्स टू r के लिए रेंज क्या होगा, अगर a पॉजिटिव है तो -d/4a आपका मिनिमम पॉइंट होता है, तो -d/4a से इंफिनिटी, और अगर a नेगेटिव है तो आपका वर्टेक्स मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो -∞ से -d/4a। आपसे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में पूछा जाए तो आपको ग्राफ बना के देखना पड़ेगा कि x1 x2 कहां पे लाई कर रहा है, वो जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। अगर x1 x2 के बीच में -b/2a नहीं लाई कर रहा है तो आप सीधे x1 x2 में जो मैक्सिमम है उसको आप मैक्सिमम में पुट कीजिए और जो मिनिमम है उसको मिनिमम पुट कीजिए। अगर -b/2a लाई कर रहा है तो फिर आप देखिए कि a पॉजिटिव है या निगेटिव है। a अगर पॉजिटिव है तो -b/2a को -d/4a को मिनिमम पॉइंट पे डालिए और fx1 fx2 में जो मैक्सिमम है उसको डाल दीजिए। और अगर a नेगेटिव है तो आपको देखना होगा कि -d/4a विल बी द मैक्सिमम पॉइंट और fx1 fx2 में जो सबसे छोटा है उसको डाल दीजिए। तो इतना दिमाग आप लगा लेंगे तो आराम से इसको हैंडल कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड x सच दैट 3x² - 7x + 6 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। 3x² - 7x + 6 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। आपको ये सॉल्व करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं a की वैल्यू क्या है, 3। डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या है, 7² -7 का होल स्क्वायर -4 × 6 × 3 दैट इज 49 - 72 विच इज नेगेटिव। तो पैराबोला क्या बनेगा, ऐसा बनेगा पैराबोला। तो क्या किसी भी वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा, नो। तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 5। सो इट वाज सच एन इजी प्रॉब्लम। अगर आप क्या कहते हैं ग्राफ जानते हैं तो तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, राइट। सेकंड सवाल देखते हैं। फाइंड x सच दैट x + 3 × x - 2 × 3x² - 7x + 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर। इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए क्या है, ये फैक्टराइज हो सकता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 - 4 × 6 × 3। अगेन सेम है, 3x² - 7x + 6 है, तो ये फैक्टराइज कभी नहीं हो सकता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इट विल ऑलवेज बी अपवर्ड, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x + 3 × x - 2 × 3x² - 7x + 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर मैं आपका x एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो आप देखिए 2 पे 0 हो रहा है, -3 पे 0 हो रहा है, -3 पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है। ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो कोई चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसकी इम्पैक्ट टोटल एक्सप्रेशन के पॉजिटिव नेगेटिव पे कुछ नहीं रहता। तो आप कह सकते हो 2 के राइट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आप आंसर बोलोगे -∞ से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो आप इसको इंक्लूड करते हैं, अगर नहीं है तो आपको इंक्लूड नहीं करना है। आइए 33rd प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स कॉल इट द लास्ट प्रॉब्लम। काफी लंबा क्लास हो गया है। आज हमने एक्चुअली थियोरेटिकल ही क्लास थी, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैं जानबूझ के आपको ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको मास्टरी नहीं हो जाएगा आगे लोकेशन ऑफ रूट सिस्टम में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको ये चीज बड़े दिमाग में क्लैरिटी से होनी चाहिए कि पैराबोला और मैश आपको, अगर कायदे से देखा जाए तो मैंने कुछ ज्यादा बात नहीं की है। मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात की है कि पैराबोला ड्रॉ करने के लिए ए एक्सिस और वर्टेक्स बनाना होता है। ये आपको सिर्फ मैं 3 लाइन में ही बता सकता था, लेकिन हमने पूरे प्रोसेस को समझा है। क्यों? क्योंकि हमें कभी अब दिक्कत ना हो, कभी हमें समझने में परेशानी ना हो। लास्ट सवाल करते हैं आज के दिन का। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x² + 2bx + c विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इफ, मतलब आपको इस एक्सप्रेशन x² + 2bx + c को पॉजिटिव बनाना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 विच इज अ पॉजिटिव। a is 1 which is positive. So you want your parabola to be totally upward. You want your parabola to be totally upward. How can your parabola be totally upward? You need to make the discriminant negative. You have to make the discriminant negative. x² + 2bx + c का discriminant क्या होगा, b² - 4ac होता है, शुड बी नेगेटिव। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 2b का होल स्क्वायर -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 c है। So you want this to be negative, which means 4b² - 4c has to be negative, which means b² - c has to be negative. b² - c has to be negative. You can say b² has to be strictly less than c. This is the condition which will make the value of the expression always positive.
सो आई होप क्या कहते हैं ये क्लास पूरी थ्योरेटिकल थी, लेकिन उसके बाद हमारी जो जूस निकली है वो बहुत इंपॉर्टेंट जूस हमने निकाला है। वो क्या, हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि हमारा पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। उससे क्या पता चलेगा, उससे बस इतना पता चलेगा कि हमारा ओरिएंटेशन क्या है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी है। वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। क्यों होता है एक्सिस, हमने बहुत अच्छे से बात कर ली इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, आपको एक्सिस निकालनी है। उसके बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स के पे हमने बात की, जहां पे एक्सिस और पैराबोला की मुलाकात होती है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। जैसे ही आपने पैराबोला ड्रॉ कर लिया, आपको पता चल चुका है कि आपका पैराबोला कैसा है। अब पैराबोला जैसे ही ड्रॉ कर लिया, आपको पता है एक्स एक्सिस कहां पे कट करेगा। अगर डी पॉजिटिव है तो अल्फा बीटा पे करेगा, डी जीरो है तो टच करेगा, और डी निगेटिव है तो इंटरैक्ट ही नहीं करेगा। और आपका वाई एक्सिस कहां पे कट होगा, 0, c पे। आपसे रेंज पूछा जाए तो आप बता सकते हो रेंज निकालने के लिए, अगर आप x बिलोंग्स टू r के लिए फॉर ऑल रियल वैल्यूज रेंज पूछ रहे हो तो d पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। d पे ध्यान देने की जरूरत नहीं अगर आप ऑल रियल वैल्यूज, तो आपको पता है कि a पॉजिटिव है तो आपको पता है कि वर्टेक्स इज द, a पॉजिटिव है तो मतलब वर्टेक्स इज द मिनिमम पॉइंट एंड इट गोज टिल इंफिनिटी। सो माइनस डी बाई फोर ए कॉमा इंफिनिटी। और अगर आपसे रेंज पूछा जा रहा है a नेगेटिव है तो आप बोल सकते हो माइनस इंफिनिटी से, क्योंकि वर्टेक्स आप मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो टॉप पे बैठा होगा मैक्स वर्टेक्स। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर ए वुड बी इंक्लूडेड। और अगर आपको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के बीच में जानना है तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि x1 x2 जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में आपको देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो x1 x2 है वो माइनस बी बाई टू के को इंक्लूड करता है कि नहीं करता है। अगर दोनों को इंक्लूड करता है तो फिर आपको सिंपली बात है कि भैया वो वर्टेक्स या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा या तो मिनिमम पॉइंट होगा। उसके अलावा x1 x2 में जो भी fx1 fx2 में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको उस मिनिमम वैल्यू आ रही है वो डाल देना है। और अगर आपका a नेगेटिव है तो इस a पॉजिटिव है तो मतलब वो सॉरी a नेगेटिव के लिए आपको a पॉजिटिव के लिए वो माइनस डी बाई फोर ए मिनिमम पॉइंट हो जाएगा और fx1 fx2 में जो मैक्सिमम होगा। और a नेगेटिव के लिए आपको देखना पड़ेगा कि fx1 fx2 में जो छोटा है उसको डालना पड़ेगा और माइनस डी बाई फोर ए मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। अगर तीसरा चीज है कि अगर x1 x2 जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसमें माइनस बी बाई टू ए पार्ट नहीं ले रहा है, मतलब x1 x2 टोटली लेफ्ट है या टोटली राइट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आफ्टर वीवी कर्व इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इस पे, और देयर इज अ रीजन व्हाई आई टुक सो मच टाइम इन एक्सप्लेनिंग योर ग्राफ, तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से करनी होगी। Okay, बच्चों, so let's call it a day. Let's meet again very soon with the lecture number 5 and I hope you will master all the। एक और चीज है, अब तक आपने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस में देखे हैं उसका ग्राफ जरूर बना लीजिएगा, आपको थोड़ी मास्टरी हो जाएगी। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।